Good morning, students. Today we will discuss our chapter number 2, that is forms of business organization. As in our first chapter, we have discussed about the nature and purpose of business, and in this chapter we will get to know about the different types of business organization. First, what is the meaning of business organization? So, a business enterprise or an organization is an institutional arrangement to form any business activity. ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि एक एंटरप्राइज इस्टेब्लिश करना हमारी डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए. सेकेंड इज क्लासिफिकेशन. देन द टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने कितने डिफरेंट टाइप्स की है, फॉर्म्स हैं इसकी डिफरेंट. फर्स्ट इज प्राइवेट एंटरप्राइज. प्राइवेट एंटरप्राइज मीन्स विच इज़ ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ प्राइवेट पर्सन. प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं जिसको कि एक पर्सन जो है ओन करता है, उसका मालिक है, मैनेज भी वो करता है एंड कंट्रोल बाय अ प्राइवेट पर्सन, उसी के थ्रू ही वो कंट्रोल की जाती है. एज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल सच एज रिलायंस, बाटा, दीज आर द प्राइवेट enterprises. Then second one is public. Public, it is owned, managed and controlled by government. इसको गवर्नमेंट ही इसकी ऑनर है, मैनेज भी करती है और कंट्रोल भी गवर्नमेंट के थ्रू ही की जाती हैं पब्लिक एंटरप्राइजेस, सच एज BSNL हैं, रेलवेज हैं. दीज आर पब्लिक एंटरप्राइजेस. थर्ड वन इज जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस. Joint sector enterprises are those which are owned, managed and controlled by both private as well as government entrepreneur. So examples such as Maruti Udyog Limited, Indian Oil Corporation, these are the examples of joint sector enterprise. Then private enterprise can be categorized into two different forms. One is non-corporate form and second one is corporate form. And further, in non-corporate form it can be categorized as sole proprietorship, then partnership, and then joint Hindu family business. In sole proprietorship there is only a single person who is able, who is responsible for the every task of the business. Then second one is partnership. Partnership, in that there are two or more than two persons are responsible for the business purpose. And there is third, joint Hindu family business. In this particular business a family owned the whole business enterprise. Then second one is corporate form. Corporate form, इसकी first example है cooperative society and second one is joint stock company. First we will discuss the non-cooperative form. First is sole proprietor. Sole proprietor is, in that business only a single individual, only a single person or an individual who own the business owned, financed and controlled by a single person, is recipient of all the profits and bearer of the risk. सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का मीनिंग क्या है या सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? बिजनेस ओन जो है, जो उसका मालिक है वो एक सिंगल पर्सन है. ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंस. जो फाइनेंस है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसके थ्रू की जाती है. And he is also responsible for controlling the business. जितना भी रिस्क है, प्रॉफिट है, लॉस है, he has to bear all that. Suitable. Suitable कहाँ है? Sole proprietorship when business is of small scale or small activities such as retail shops, जैसे हमारे घरों के आसपास हम लोग देखते हैं किराना शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, हेयर कटिंग सैलून, small scale business.
feature. Single ownership means it is wholly owned by one individual. इसको जो भी इसका मालिक है वो एक सिंगल पर्सन है. कंट्रोल भी जो फुल डिसीजन मेकिंग पावर है ओनली अ सिंगल पर्सन इज़ हैविंग. नो सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स देयर इज़ नो लीगल डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस एंड द बिजनेस पर्सन. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है जो बिजनेस है और जो बिजनेस पर्सन है, ऑनर है बिजनेस का, दे बोथ आर सेम. अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है एज इन आवर थर्ड point we have discussed that both business and business person is same. Then unlimited liability means the liability of the owner is unlimited. In the case the assets of business are not sufficient to meet its debts, then the personal property of the owner can be used for paying debts. Means if अगर पर्सन जो है वो किसी से डेट लेता है, उधार लेता है, देन ही हैज़ नो प्रॉपर और सफिशिएंट मीन्स टू पे बैक, देन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो भी इंक्लूड इन द रीपेमेंट. अगर किसी पर्सन ने किसी से लोन लिया अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और उसके पास अब लोन नहीं चुकाने के लिए पैसे नहीं है, देन हिज पर्सनल एसेट विल बी इंक्लूडेड. दैट मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी. उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, मीन्स कि उसके जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी इंक्लूड होगी इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू पे बैक हिज डेट्स. नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, या नहीं कोई भी जो पर्सन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और कभी भी स्टार्ट कर सकता है, उसको मैनेज कर सकता है और जब भी चाहे अपने बिजनेस को बंद भी वो कर सकता है. इसके लिए उसको किसी की भी परमिशन लेने के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है. सोल बियरर एंड रिस्क और सोल बियरर ऑफ द रिस्क एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट. सोल प्रोप्राइटर इज़ अ पर्सन हु इज़ एबल टू गेट ऑल द प्रॉफिट एंड ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल द रिस्क. रिस्क भी वो बियर करता है सारा, और जितना प्रॉफिट एंड लॉस है ही हैज़ टू बियर दैट. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेरिट्स. मेरिट्स ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस. फर्स्ट इज ईजी टू स्टार्ट एंड क्लोज. जो फर्स्ट इसकी मेरिट है एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ देयर इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटी. कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, बहुत इजी है इसको स्टार्ट करना एज वेल एज टू क्लोज इट. क्विक डिसीजन मेकिंग. सोल प्रोप्राइटर डजंट हैव टू कंसल्ट और टू इन्फॉर्म एनीबॉडी. उसको ना तो किसी को कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट है और ना ही किसी को इन्फॉर्म विद बिफोर टेकिंग हिज डिसीजंस. तो बहुत जल्दी वो डिसीज़न लेता है. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट. जितना भी प्रॉफिट है वो उस पर्सन का है पर्टिकुलर, तो उसको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. अकम्पलिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट प्रोवाइड करता है. अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी है ऑनर की इन द केस ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस नॉट सफिशिएंट टू मीट हिज डेट्स. द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर कैन बी यूज फॉर पेइंग डेट्स. अनलिमिटेड लायबिलिटी जो है वो इसमें शेयर करता है, जिसमें कि उसको जितना भी अगर इज़ not able to pay off his debts, his personal assets will be included in it. It is his demerit also, because sometimes our business is not fruitful. हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही हो रहा है, नुकसान भी हो सकता है, तो उसमें हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अगर इंक्लूड हो रही है तो इट इज़ टेकन एज बोथ मेरिट और एज डीमेरिट ऑल्सो. देन इज़ नो लीगल फॉर्मेलिटीज़. कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, तो इट इज़ वेरी easy to start or easy to dissolve. Then sole risk bearer and profit recipient. जितना भी in business it is saying that more the risk more the profit. So जितना भी एक पर्सन रिस्क लेगा उतना ही उसको प्रॉफिट भी होगा.
तो ही इज़ द सोल बियरर, वो एक अकेला बियरर है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। देन लिमिटेशंस, लिमिटेशन मीन्स क्या क्या इसके नुकसान हैं, क्या क्या इसके कॉन्स हैं। फर्स्ट इज़ लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नाउ द फर्स्ट थिंग इज़ अ पर्सन, एक जो पर्सन है उसके पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो जो उसकी बोरोइंग कैपेसिटी है वो भी कम है, तो उसको जितना भी वो बिज़नेस में पैसे लगाता है वो उसकी पर्सनल सेविंग्स होती हैं, और बोरोइंग कैपेसिटी या जो भी जितना भी फंड है या तो उसकी पर्सनल सेविंग्स पे डिपेंड करता है या फिर उसकी बोरोइंग कैपेसिटी पे। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, एज सोल ट्रेडर कांट बी गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ये है कि ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन जो है वो हर एक चीज़ में ही बहुत अच्छा हो। तो इसमें क्या है, हो सकता है कि वो डिसीज़न मेकिंग जो है इतनी अच्छी नहीं कर पा रहा है। कांट अफोर्ड एम्प्लॉय एक्सपर्ट ऑल्सो, और जैसे उसके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो वो कोई ऐसा पर्सन भी नहीं रख सकता है जिसकी वो हेल्प ले सके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स सोल ट्रेडर कंपेल्स हिम टू अवॉइड रिस्की एंड बोल्ड बिजनेस डिसीजंस। एज देयर इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी, तो कई बार क्या है जो बिजनेसमैन है वो डरता है रिस्की और बोल्ड डिसीज़न लेने से कि उसका कहीं जो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका घर है, उसका जो और जो उसके पर्सनल एसेट्स हैं वो कहीं ना बिक जाएं। अनसर्टेन लाइफ, देयर इज़ अ सिंगल पर्सन, तो अनसर्टेन है लाइफ, सभी की अनसर्टेन है। तो अगर एक बस जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी मतलब कि उसके पास अब अपने जो लाइबिलिटीज़ हैं वो पे ऑफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। देन इलनेस ऑफ द प्रोप्राइटर, लुनेंसी, देन बिजनेस लीड्स टू क्लोजर। तो इसमें क्या है, जो बिज़नेस है वो क्लोज़ करना पड़ता है उस पर्सन की। डेथ हो गई तो ऑब्वियसली वो अपने आप ही क्लोज़ हो जाएगा। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, लिमिटेड कैपिटल की वजह से मैनेजरियल्स जो स्किल्स हैं उनकी वजह से जो देयर इज़ अ लिमिटेड स्कोप टू एक्सपैंड इट टू द लार्ज स्केल। तो एक सिंगल पर्सन जो है वो सोल प्रोप्राइटर है, वो प्रॉपर एक्सपेंशन का जो है वो लिमिटेड स्कोप है, वो ज़्यादा अपना बिजनेस नहीं एक्सपैंड कर पाता है। देन सूटेबिलिटी, सोल प्रोप्राइटर वेयर इट इज़ सूटेबल मोर। फर्स्ट, वेयर द पर्सनल अटेंशन टू द कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड एज इन टेलरिंग, ब्यूटी पार्लर। सूटेबल ये वहीं है जहाँ पे हमें डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ता है अपने कस्टमर के साथ, जैसे कि टेलरिंग बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर बिजनेस है, सैलून बिजनेस है। वेयर गुड आर अंडर अनस्टैंडर्डाइज लाइक आर्टिस्टिक ज्वेलरी, जहाँ पे गुड्स इतने स्टैंडर्डाइज नहीं हैं जैसे आर्टिस्टिक ज्वेलरी है वहाँ पे। वेयर मोडेस्ट कैपिटल एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स आर रिक्वायर्ड, सच इन द केस ऑफ रिटेल स्टोर, जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कैपिटल या बहुत ज़्यादा मैनेजरियल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि रिटेल स्टोर्स हैं। बिजनेस वेयर रिस्क इज़ नॉट एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, जहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन जो है प्राइस और डिमांड की बहुत मतलब कम ज़्यादा बहुत कम होती है। जैसे कि स्टेशनरी शॉप है, उसमें जो पर्टिकुलर प्राइसेस हैं गुड्स के वो वही रहते हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें नहीं आते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर द सोल प्रोप्राइटरशिप।